Hello everyone, welcome to Easy Ganit. My name is Sandeep Sardana, a plus educator on Unacademy, and in this video I'll be discussing details on Snap. All you need to know about Snap would be discussed in this video. The main aspects that I will be covering would be exam pattern and the strategy to score 99 plus percentile. I scored 99 plus in Snap 2019. I'll be discussing my strategy with you and also my scorecard analysis with you. We'll also be discussing score versus percentile, college cutoff, Snap college program details, and what is their final selection process. What is the weightage that they have assigned to different, uh, uh, stages, right? So we'll be discussing all these details, right? Symbiosis, as Snap, everybody know is to get admission into Symbiosis colleges, right? There are many campuses of Symbiosis. Should you be opting for all of these? It completely depends on you, but let me tell you, these three are the most famous one. Symbiosis, Institute of Business Management Pune, SCMHRD Pune, and SIIB Pune. Now, SCMHRD is not only for HR. Many students have this doubt कि SCMHRD है तो इसमें तो सिर्फ HR प्रोग्राम ही होगा तो मुझे HR नहीं करना है so I should not be opting for this. No, it's not like that, right? SCMHRD offers programs in marketing, finance, HR or even in operation also, right? So इसमें आप कोई भी जनरल MBA के लिए प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हो. Same is for SIBM and same is for international business. Symbiosis Institute of International Business is specifically for international business, right? But the aspect of it, you will also be studying, marketing and finance in this, but with the international perspective, right? So this is a specific college for international business program. But then you have a chances of getting admission, getting a placement from SIIB as a marketing consultant also, depending upon the electives or the subjects that you will be selecting in your fourth semester, right? So आप किसी भी program, when you will be going for SIIB, you will be given a chance to finally opting for marketing or finance or operation subjects. So depending on your profile, the subjects that you will be selecting, you will be getting the placement. Okay. And SIBM Bangalore is also a college that you can opt for, but only after studying their placement records and the return on investment is very important factor that you should be considering while selecting SIBM Bangalore. Symbiosis के और भी बहुत campuses हैं जो specific program के लिए भी आपको MBA offer करते हैं. For example, you have SICSR only for computer studies and research, telecom management, SIMS Pune. There is a specific program of media and communication. There is a specific college of Symbiosis targeting only operation management and information technology, health science, banking and finance, and sports science also. So if these are the programs that you would like to opt for in Symbiosis colleges, then you can also select any of these colleges. But आपका interest in programs में होना चाहिए, otherwise आपको ये opt नहीं करना चाहिए, right? For example, अगर आपका interest media and communication में, if you want to go for media and communication, then you should be opting for SIMC, right? Okay, otherwise not. General MBA program के लिए जाना है, then you can go for SIBM Pune, SCMHRD, SIIB. ये तीन colleges का placement भी बहुत अच्छा है, right? You will be much safer, right? In terms of return of investment, and you can also opt for SIOM. Symbiosis of International Operational Management is also a good college that you can opt for, right? बाकी सभी colleges के लिए study करके जाना, right? कितना fees है and all that, right? I'll be giving you the detail on the fees, right, of these four main colleges in this video also. Now let's come to the main point. Exam pattern क्या है? क्या strategy आपको follow करनी चाहिए? And what are the exam dates, right? Let's talk about the dates of this year, 2021 में. There are 3 dates of Snap. 19 दिसंबर को एग्जाम होगा, 8 जनवरी को होगा, 16 जनवरी को भी होगा. A candidate can appear for a maximum of 2 tests. 2 टेस्ट आप दे सकते हो, right? And the higher score will be considered for your selection process, and there will be no normalization. ऐसा नहीं है कि 8 जनवरी का पेपर टफ आ गया तो there will be normalization of score as per the level of difficulty. There is no normalization. CAT में जिस तरह से normalization होता है depending on the level of difficulty in all these 3 slots, there is no normalization process in Snap, right? Specifically mentioned, right, in the notification. So 3 में से किसी भी 2 दिन आप दे सकते हो. My advice would be that you should be giving Snap only after CAT, right? और वैसे भी CAT पहला slot जो है वो भी 19 दिसंबर 2021 को बाद में ही है, right? So you can select any of these 2 dates, right? If you want to go for 2 attempts. 2 attempt आपको देने ही चाहिए, right? Snap के लिए. एक ही घंटे का पेपर होगा, right? These are the timings, right? On these dates, right? एक ही घंटे का पेपर है. Only 60 minutes will be given to you
to attempt this paper, right? With no normalization process, keep this in mind. Last date to apply is 27th November 2021. Eligibility criteria is very basic. You can just quickly go through it. General के लिए 50%, SC ST के लिए 45% in graduation, and these details. So just quickly go through it, right? We don't need to straight away read this as it is, right? The main point that we should be discussing would be the exam pattern and what should be the strategy that you should be following to get admission in, to get a 99 plus percentile. एक घंटे में कितना स्कोर आपको टारगेट करना है, कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आएगा, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर प्रिपरेशन एज वेल एज टू अटेम्प्ट द पेपर, राइट? सो स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द पेपर एज वेल एज स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर स्नैप, ये दोनों चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न गाइस, राइट? जनरल इंग्लिश, देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, राइट? आप जो टाइम चाहो, जितना टाइम चाहो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अटेम्प्ट कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कैट दैट यू विल बी गिवन ओनली 40 मिनट्स टू अटेम्प्ट DILR and all that, right? ऐसा इसके अंदर नहीं है. You will be given total 60 minutes and you can select any of this section, right? जो भी आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना है वो आप कर सकते हो. जनरल इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटीज, वन सेक्शन जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे. मार्क्स पर करेक्ट आंसर वुड बी 1, टोटल मार्क्स वुड बी 15. एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 1 mark per correct answer, total marks would be 25. There's also negative marking, 1/4, 25%, 1/4 negative marking है. एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव होगा. And you see that data interpretation and data sufficiency के 20 क्वेश्चन, marks per correct answer is 1 and total marks would be 20. ड्यूरेशन आपका 60 मिनट. ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हुआ. ओके, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, राइट, कि कितने मार्क्स आपको टारगेट करना है, राइट? व्हाट शुड बी द मार्क्स यू शुड बी टारगेटिंग. दिस इज माय स्कोर कार्ड. आई विल बी कमिंग बैक टू दिस स्लाइड इन अ मिनट. ओके, ये एग्जाम में लास्ट ईयर के पेपर में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे 2020 के पेपर की अगर हम बात करें, उसको भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. आई वुड लाइक यू टू क्विकली टेक यू टू द कट ऑफ, राइट? Marks versus cutoff. You see that 99.85 percentile is at marks of 49.25. 49.25 पे 99.85 है. So मोटा if you have to score 99 plus percentile, your target should be around 50 marks. Now you have total time of 60 minutes, right? बाकी ये 99 का परसेंटाइल अगर आप फाइनली देखो, ये 99 से अबव के परसेंटाइल है साइन रे. 99 का परसेंटाइल इज एट 44.25 marks. So 45 is what I should be targeting. 45 marks, right? This is the marks. If you get this much marks, you will be getting 99 plus. So 45 plus, right, is the marks. Are the marks that will take you to 99 plus. So क्या strategy होना चाहिए 45 marks? Now what is the total time we have? एग्जाम में टोटल टाइम जो आपके पास है दैट इज 60 मिनट्स, राइट? 60 मिनट का आपके पास टोटल टाइम है बच्चों, राइट? 60 मिनट्स में 45 क्वेश्चन, क्या 45 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं. सो आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? आई गेस 45 क्वेश्चंस लाने हैं आपको, तो 52 प्लस का तो आपको अटेम्प्ट चाहिए होगा, राइट? यू माइट बी डूइंग 2 or 3 क्वेश्चंस रॉन्ग, राइट? सो यू नीड टू अटेम्प्ट 52 प्लस क्वेश्चंस, राइट? 52 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे in 60 minutes. That means overall time to attempt the paper, right? हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम कितना हुआ? Hardly 1 minute, right? And then how much option you have to leave the question, right? CAT के एग्जाम में क्या होता है? There is also an option you have to, आपको 99 plus percentile 50% पेपर पे सॉल्व करने से मिल जाएगा. बट यहाँ पे मुझे 52 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 52 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? Now just do this math. 52 questions are supposed to be solved out of 60 questions with 95% accuracy, at least, right? तब जाके आपको 99 plus percentile मिलेगा. That means you have very less option. You don't have much option to leave the question because you are attending approximately 90% of the paper. आपको 90% paper attempt करना. Now keep this in mind. It's a very important factor in SNAP. कि आपको वो आप यू आर गोइंग फॉर एग्जाम वेयर यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू लीव द क्वेश्चन, राइट? आपके पास ये ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि आप हर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को लीव कर सको. नहीं, 10% क्वेश्चन ही आप लीव कर सकते हो. सो कैन आई से दैट कि अगर मेरे को जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो मिनिमम मेरे को इनफैक्ट इंग्लिश में तो आपको कोई क्वेश्चन लीव करना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर रहा है, राइट? 8 ही क्वेश्चन लीव करने की ऑप्शन है. So if I have to make a strategy for this paper,
आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट नॉट टू लीव अ क्वेश्चन इन इंग्लिश। एक क्वेश्चन इंग्लिश में क्वेश्चन को लीव नहीं करो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहे हो और आपको कोई थ्योरी क्लिक नहीं कर रहा है। इट्स नॉट दैट, राइट? देयर कैन बी क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, अब यू आर नॉट एबल टू रिकॉल ए कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं कर रहा है या आपको कॉन्सेप्ट क्लिक ही नहीं कर रहा है, देन यू विल हैव टू लीव दैट क्वेश्चन। यू डोंट हैव एनीथिंग एनी अदर ऑप्शन बिकॉज टाइम इज वेरी लेस। सो क्या इंग्लिश के क्वेश्चंस को लीव करना चाहिए? नो, देयर इज नो ऑप्शन टू लीव एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश, राइट? Zero leaving. That means you need to attempt 15 out of 15 questions. तभी आपका टोटल 52 का अटेम्प्ट पूरा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। बिकॉज देयर आर चांसेस दैट एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो आप नहीं कर पाओ। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको क्लिक नहीं करें। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको क्लिक नहीं करें, राइट? या फिर सीरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको क्लिक नहीं करें। बट स्टिल इफ आई वॉन्ट टू रीच to the attempt of 52, 15 मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया with 90% accuracy, 95% accuracy मुझे पेपर में मेंटेन करना है। So I'm left with 37 more questions, right? 37 मुझे और questions अगर करने हैं, right? So I need to attend at least 20 questions. Analytical reasoning में आपको 20 questions attempt करने हैं 25 में से, if you're targeting 99 plus. 35 बाकी आपके बचे 17। सो डी क्वांट डेटा इंटरप्रिटेशन में 17 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20, मिनिमम 17 क्वेश्चंस, राइट? सो ये तो आपका अटेम्प्ट है, राइट? दिस इज एंड विद 95% एक्यूरेसी। दैट मींस नाउ व्हाट डज इट टेल यू? हाउ यू शुड बी फॉर्मिंग अ स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर स्नैप। दैट मींस यू डोंट हैव व्हाई आई एम डूइंग दिस, सो दैट यू रियलाइज, यू मेक अ फाइनल फर्म स्ट्रेटजी कि आपको फाइनली स्ट्रेटजी स्नैप के लिए अगर जाना है तो मेरे को स्ट्रेटजी क्या करनी है। अब 90% पेपर मुझे अटेम्प्ट करना है, 20-25 में से 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चंस लीव कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। क्वांट में 20 में से 17 करने, दैट मींस आपके पास कोई भी चैप्टर को लीव करने का ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ज्योमेट्री नहीं करना है, राइट? ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चंस आ गए तो आपका गया पेपर, राइट? या फिर अलजेब्रा नहीं करना है। इट्स नॉट दैट रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, टू एक्सप्लेन यू द रीजन कि कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना है। आप the level of difficulty would be very easy of this paper. अगर आप level of difficulty बात करेंगे तो we'll be just having a look at SNAP 2020 paper और कहां से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे, उनका level of difficulty भी आप देखना। I'll also put the solution of SNAP 2020 paper on this, right, on this channel. उसका भी एक separate वीडियो मैं आपको दे दूंगा। You'll see that कि level of difficulty is very very easy. But अगर किसी बच्चे ने permutation combination पढ़ ही नहीं रखा है तो फिर वो इजी भी क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा और डिफिकल्ट भी नहीं कर पाएगा, राइट? स्नैप का पेपर अगर आपको टारगेट करना है बच्चों, जस्ट कीप दिस इन माइंड, डोंट लीव अ सिंगल चैप्टर। बेसिक्स आपको अच्छे से सभी टॉपिक्स के आने चाहिए। दैट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर स्नैप। पूरा सिलेबस डिटेल में करना है। अच्छा, पूरा सिलेबस डिटेल में करना है तो करना क्या है, और ये कंफर्म हो गया। टाइमिंग क्या क्या होना चाहिए। ओके, नाउ यू सी दैट बहुत बच्चे, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स डूइंग दिस मिस्टेक ऑफ डिपेंडिंग ऑन 1 or 2 सेक्शन कि यार ये सेक्शन हमारा वीक है, इसमें से हमें सारे सेक्शंस नहीं अटेम्प्ट करने, 2 सेक्शन से कट ऑफ क्लियर करना है। स्नैप के पेपर में ऐसा नहीं हो सकता है। यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ अगर आप 3 में से 2 सेक्शन को मेनली टारगेट कर रहे हो। आप ये सोचो कि क्वांट मेरा वीक है तो मुझे ये नहीं, इसमें से मुझे कम अटेम्प्ट करना है, मेरे को यहां से मार्क्स आना नहीं पॉसिबल है इस स्नैप के एग्जाम के अंदर, बिकॉज 17 क्वेश्चन को कहां से आप फिल करोगे, राइट? आप कितने भी अच्छे हो एआर के अंदर, 25 में से 20 ही क्वेश्चंस एग्जाम प्रेशर में आप सॉल्व कर पाओगे। 25 to 25 वुड बी वेरी रेयर, बहुत रेयर बच्चे, 1 या 2 या 3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं एआर के अंदर 25 में से 20 क्वेश्चंस आए। आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो, देयर वुड डेफिनेटली बी सम क्वेश्चन जो आप वहां पे जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक कर दोगे या फिर आपको क्लिक नहीं करेंगे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट अ जनरल कैंडिडेट एंड लेट्स बी मोर फिजिबल, राइट? जो जिसकी पॉसिबिलिटी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 20 का आपको अटेम्प्ट करना है एंड एआर में से, और आपको इसमें एटलीस्ट 17 करना है, तो आपका क्वांट का पूरा सिलेबस 100% सिलेबस आपको डिटेल में करना है, अच्छे से करना है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी आएगा बट आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। आपको टॉपिक कोई भी लीव नहीं करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो वैसे भी स्नैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इवन प्रोबेबिलिटी भी आपको करके जाना है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये सब टॉपिक्स आपको करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर, राइट, ऑन टिप्स। Analytical and logical reasoning. Analytical and logical reasoning, you see that all the topics need to be done. क्या सिलेबस है अभी हम उसकी बात करेंगे, बट आपको पूरा 100% सिलेबस एआर का भी करना है। और जनरल इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये डायरेक्ट मार्क्स आएंगे, बहुत क्विकली आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर, तो ये भी आपको पूरा अटेम्प्ट करना है।
कितना टाइम किस पे देना चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं, बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सिलेबस क्या है। लास्ट ईयर के पेपर की बात करें स्नैप 2020 की, एंड आउट ऑफ टोटल 20 क्वेश्चंस, राइट, जो 20 जो क्वेश्चंस स्नैप में 2020 में आए थे, देयर वर 8 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक। नाउ दिस इज अ हाईलाइटिंग थिंग, राइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में से 5 क्वेश्चन जिसमें आपका मेनली पी एंड सी था। सो पी एंड सी इज समथिंग विच आई वुड से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। पीएनसी के क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी नहीं थे, मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे थे, कुछ बहुत इजी थे। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से करना है, राइट। सिलेबस ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा का 1, डेटा इंटरप्रिटेशन का 1। सो अगर आपने कैट के लिए डीआई पढ़ा है तो आपको इसको सेपरेट प्रिपेयर नहीं करने की जरूरत है, राइट। कंप्लीटिंग द सीक्वेंस अ सीरीज टाइप क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन आपको आया था। सो यू सी दैट टॉपिक सभी टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं मिले। सर जी ज्योमेट्री में तो 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लीव कर दूं क्या? नहीं करो लीव। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे। बेसिक्स तो पढ़ के जाओ, अच्छे से करो, राइट। बेसिक्स को अच्छे से करो, अगर क्योंकि ये 2 क्वेश्चन फ्री के नंबर भी हो सकते हैं। दिस माइट बी डायरेक्टली बेस्ड ऑन ए थ्योरम, कोई हो सकता है मिड पॉइंट थ्योरम पे, या फिर आपको अपोलोनियस थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। सो इफ यू आर लीविंग एन इजी क्वेश्चन, यू आर लीविंग इजी मार्क्स। और उसके सामने हो सकता है आप अरिथमेटिक का डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सो आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है क्वेश्चंस को लीव करने की। अगर आप 99 प्लस टारगेट कर रहे हो उसको, उसके अकॉर्डिंग तो आपको डेफिनेटली नहीं लीव करना चाहिए। कोई भी टॉपिक नहीं लीव करना चाहिए। ये टॉपिक में से क्वेश्चन है और आप देख रहे हो ये पूरा मैथमेटिक्स कवर करते हैं। अभी इसके अलावा कोई टॉपिक बचता नहीं है क्वांट में कि ये से कि लास्ट ईयर यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो लेट्स लीव इट। नो, आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। 101% बेसिक अच्छे से आपको आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी मिलेंगे, ये गारंटी है। रीजनिंग का क्या सिलेबस है जी, राइट। इफ यू टॉक अबाउट अ रीजनिंग क्वेश्चन, यू सी दैट कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 4, लेटर सीरीज 1, सिलोग्स 1 क्वेश्चन, सर्कुलर अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन, लीनियर अरेंजमेंट 2, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 2 क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन का 1, assumption 2, general miscellaneous reasoning 3, paragraph conclusion 1, which is a part of verbal ability. You can say not verbal ability, verbal reasoning आपका आ गया ये, right? Total 25. So ये टॉपिक आपको डिटेल में अच्छे से करना है। इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर में बहुत ईजी है। ये सब टॉपिक मैं ऑलरेडी प्लस कोर्सेज में, स्पेशल क्लासेस में करवा चुका हूं, बट आई विल आल्सो बी अपलोडिंग द कंटेंट फॉर योर प्रैक्टिस ऑन दीज टॉपिक्स, राइट। ये सभी टॉपिक्स पे आपको कंटेंट चैनल के ऊपर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा फॉर योर स्नैप एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। इजी क्वेश्चन है बट ये आपको पूरा सिलेबस करना है, राइट। इसमें आप इनपुट आउटपुट भी डाल सकते हो। लास्ट ईयर इनपुट आउटपुट नहीं आया, बट देन दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यू माइट गेट क्वेश्चन ऑन इट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस कैट में पहले बहुत आया करते थे, जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, विच वी कॉल्ड एज अ नॉन वर्बल रीजनिंग। यू नॉट नीड टू डू दोस क्वेश्चन आल्सो। पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग के क्वेश्चंस भी आपको इस सिलेबस में ऐड करना है, बिकॉज लास्ट ईयर ये टॉपिक्स आए थे। डजंट मीन कि एक दो टॉपिक नए और ऐड नहीं हो सकते हैं, राइट। सो डू योर सिलेबस कंप्लीटली फॉर रीजनिंग। दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज क्वाइट इजी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दोस 15 क्वेश्चंस, राइट, 15 क्वेश्चन में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर के 2 क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच 3, सिनोनिम 1 क्वेश्चन, आइडियम एंड फ्रेजेस 3, कंपाउंड वर्ड 1, पैराजंबल 1, एंटोनिम 1। You see that? So इसमें से कुछ मार्क्स तो आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, राइट। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम 1 क्वेश्चन, राइट, आपकी वोकैब पे डिपेंडेंट है। एंटोनिम भी, इडियम फ्रेजेस भी आप ढंग से पढ़ सकते हो, दिस इज ऑल्सो वोकैब डिपेंडेंट, राइट। सो दिस इज अ सिलेबस। ग्रामर के 2 क्वेश्चन ये आपको डिटेल में पढ़ना है। इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डेफिनेटली ही आपको इजी मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड इट कि आपका इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपका हाई है। इट्स वुड बी वेरी इजी, राइट। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डू इट प्रॉपरली। नाउ these are the this is a syllabus that you are supposed to study. And why I'm showing this scorecard to you is, see that I'm a quant faculty. I teach DI, I teach logical reasoning also. But अगर मुझे भी 99 plus target overall CAT में करना है, my overall percentile was 99.918. It's a bit blurred because I took a screenshot, बहुत पहले का screenshot लिया हुआ है, so थोड़ा blurred है ये। 99.9182 is the exact percentile, right, of SNAP 2019. Right, you see that my marks, right, it's not that I got this percentile only by attempting the quant question. अगर आप एक या 2 सेक्शन को टारगेट करोगे तो आपका ये परसेंटाइल नहीं आ सकता, राइट। My marks in first section verbal ability was around 32, analytical and logical reasoning I got 33 around, and quant I got around 31.
right? This is 51 total marks, 54 total marks, 45 total marks. So see that if I want to target 99 plus percentile, it cannot be from one or two section. आपको हर section में से questions करने हैं, right? There is not an option in CAT. उस टाइम पे स्नैप दो घंटे का हुआ करता था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा होते थे. But now it has changed a lot. What I want to just convey you through this scorecard is that you have to get marks in every section. बिकॉज सेक्शनल टाइम नहीं है स्नैप के एग्जाम के अंदर लाइक कैट, इट डजंट मीन कि आप अपने स्ट्रेंथ एरियाज में से क्वेश्चंस करो. आपको अपने वीक एरियाज जो है, जो अगर आपका वर्बल एबिलिटी वीक है तो आपको वहां से मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, राइट? सो यू सी दैट इफ आई हैव टू टारगेट अराउंड 50 मार्क्स, 52 में से अगर लेट्स से कि आपके दो क्वेश्चन गलत है और मुझे 50 मार्क्स सही करने हैं, 50 या 3 क्वेश्चन भी गलत करो 49, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है. 95% एक्यूरेसी आपको चाहिए. तो इन दोनों का 100% अटेम्प्ट करता हूं, 25 20 45 के 45 क्वेश्चन सही करूंगा, स्टिल आई एम नॉट रीचिंग टू द परसेंटाइल ऑफ 99, राइट? सो इट्स नॉट दैट कि आप एक सेक्शन को लीव करो. यू हैव टू डू द 100% सिलेबस. दैट्स द ओनली स्ट्रैटेजी फॉर स्नैप. विद 95% एक्यूरेसी आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड स्पीड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा. 60 मिनट में 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, दैट मींस एक क्वेश्चन को करने में आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट? सो ओवरऑल 60 मिनट का डिवीजन जो आपको रखना चाहिए, बिकॉज मुझे वर्बल जनरल इंग्लिश में पूरा एक्यूरेसी मेंटेन करना है. कीप 12 मिनट आउट ऑफ 60 मिनट फॉर जनरल इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? बिकॉज इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को करने में, पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, राइट? यू शुड बी कीपिंग दिस टाइम फ्रॉम 10 मिनट, डिपेंडिंग कि आप इंग्लिश में बहुत फास्ट हो तो 10 मिनट. अगर आपका एक्यूरेसी गेट कॉम्प्रोमाइज इफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फास्ट, देन मिनिमम यू शुड बी गिविंग 12 मिनट. 10 से 12 मिनट आपको इसमें देने हैं एंड यू विल बी लेफ्ट विद फ्रॉम 48 टू 50 मिनट. आई वुड से कि यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है. 25 क्वेश्चंस हैं और आप अटेम्प्ट भी आपको वर्बल रीजनिंग के जो इसमें क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट असम्पशन, दैट विल टेक द सेम टाइम एज जनरल इंग्लिश, राइट? तो वो आपका उसमें बहुत ज्यादा अटेम्प्ट टाइम नहीं रहने वाला. सो आई शुड बी सेइंग, आई वुड सजेस्ट दैट to attempt these 22 questions, 20 questions out of 25, you should be giving at least 25 minutes to this, right? 25 से 30 मिनट आपको इस सेक्शन के लिए देने हैं and for the rest of this for quant you should be giving rest of 20 to 25 minutes. बाकी जो 20 से 25 मिनट बचे, जो भी टाइम बचा 20 से 25 मिनट का, वो टाइम आपको क्वांट के लिए देना है. ना कीप दिस इन माइंड. यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस करना है, यहाँ पे आपको 15 आउट ऑफ 15 करना है. सो टाइमिंग पर क्वेश्चन इज वेरी लेस. टाइमिंग अगर पर क्वेश्चन बहुत कम है और ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपका सिलेबस 100% से अच्छे से कवर होगा. बेसिक लेवल पे भी अगर आपने किया होगा तो भी आप इस पेपर को टारगेट कर सकते हो. सो दैट आई वुड सजेस्ट टू ईच ऑफ माई स्टूडेंट कि आपको पूरा डिटेल में 100% सिलेबस अच्छे से करके जाओ. एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. पर मिनट क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखो कि 1 ही मिनट का टाइम आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा और एक्यूरेसी 95% आपको मेंटेन करनी है, which is really a difficult task. So mainly you should be giving as many mocks as possible. Once you are done with the syllabus, जब आपने एक बार सिलेबस किया और आपको ये ध्यान रखना है माइंड में कि आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नहीं करना है. ज्योमेट्री करना है तो बेसिक लेवल पे ही करना है. बेसिक लेकिन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड ऑल दैट. अलजेब्रा के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. बेसिक्स क्वेश्चन करो लेकिन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर रखो, तो फिर आप इजीली इस पेपर को टारगेट करोगे. वंस यू आर डन विद दिस, जस्ट गिव एज मेनी मॉक एज पॉसिबल, बिकॉज इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करना पड़ेगा. यू नीड टू ब्रॉट योरसेल्फ टू दिस लेवल कि आप इजी लेवल के क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो. स्पीड विल मैटर अ लॉट इन स्नैप एग्जाम, राइट? So I hope you get all this detail about paper, syllabus, strategy. Now, if we talk about SI, if these are the 3 colleges that you want to target, which I suggest recommend to my students: SIBM Pune, SMHRD Pune, SIB Pune. Percentile is 97 to 98.5 तक SIBM में definitely call आ जाएगा आपको पुणे वाले कॉलेज से. 96 से 97 you can expect call from SMHRD. This is as per the last year data. 94 to 96 SIIB Pune. SIBM बैंगलोर टारगेट करे तो 88 प्लस परसेंटाइल पे भी मिलने के चांसेस हैं. बट अगेन इस कॉलेज का ROI आपको स्टडी करना चाहिए, वहाँ के एलुमनाई से बात करनी चाहिए, उसके बाद ही
you should be taking a decision for SIBM Bangalore. ये 3 कॉलेज बिल्कुल सेफ हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है. Okay, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल आपको बोल दिया 99 प्लस के लिए 45.5 के अराउंड परसेंटाइल चाहिए, राइट? सो आई वुड से टू गेट एनी ऑफ दीज 3 टॉप कॉलेजेस, अगर आप 98 पे भी हो देन यू आर सेफ, विच इज एट 44.25. 44.25 से नीचे कन्वर्जन वुड बी रियली रियली डिफिकल्ट. सो इससे नीचे का स्कोर तो आपको बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना है. 45 से नीचे जाने का पॉइंट नहीं है, राइट? सो लेट्स नॉट डिस्कस दिस, राइट? क्योंकि 95 पे आप क्या करोगे? ऐसे इन टॉप के 3 कॉलेजेस में यू विल नॉट बी गेटिंग एनी एडमिशंस. So if you are getting these percentile, there's no point of getting admission into Symbiosis. So 45 is a target. That's a target that you need to get, right? बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको स्पेसिफिक किसी प्रोग्राम में जाना है, मीडिया कम्युनिकेशन में जाना है and all that, then you can refer to these cutoffs also, right? Okay. If you talk about the weightage, right, shortlisting and selection process after SNAP 2021 entrance test, once you're done with it, a candidate will be shortlisted for further Symbiosis admission process. उसमें क्या है? Group exercise है, personal interview and writing ability test, right? SNAP score out of 60 scale down to 50 marks, right? Group exercise जो होगा उसका 10 का weightage है, right? 10% का weightage होगा. Personal interaction, that means personal interview जो होगा आपका उसका 30% का weightage. Written eligibility test would be given 10% weightage. So I don't see much, any weightage assigned to your academics here, right? So अगर आप score अच्छा लेके आओ group exercise में और interview में अच्छा perform करो, then you stand good chance of getting admission into top 3 colleges of Symbiosis, right? This is how the selection process is as per their website, right? This is the data that is available on their website. So no weightage. I don't see any weightage to the academics here, right? So good thing for those students who don't have good academics. This is the college you can target. Talking about SIBM Pune course MBA, any general MBA program, fees is around 22 lakh, average salary 18 to 19 lakh per annum. Cut off 98 to 99 plus of campuses हैं जो Bangalore और हैदराबाद और नासिक में है, which I would not recommend at all. आपको जाना है तो SIBM Pune के लिए टारगेट करो. That's it. My advice to my students only. बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है. SCMHRD पुणे, yes, good to go college. Fees 20 to 22 lakh. Average salary, this is the approximate cutoff. We have already seen it, right? So ये डिटेल्स बच्चों आपको है जो ध्यान रखनी है. SIIB पुणे, फीस जो है इसका 16 लाख है, एवरेज सैलरी 10 लाख के अराउंड. सेफ कॉलेज है, यू विल डेफिनेटली गेट द प्लेसमेंट, राइट? बाकी नासिक इज SIOM is also a college that you can think of only after checking their records. But as per their website, fees at present is 16 lakh. इनका एवरेज सैलरी जो शो किया हुआ है that is 11.5 lakh. Cross verified, talking to the alumni, right there, try to search their website. जिस भी कॉलेज में आपको जाना है बच्चों, you need to know the details of that, right? आपको खुद से वहाँ पे प्रॉपर ढंग से रिसर्च एक करना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए before you decide to go for it, right? That's it, guys. These बाकी सभी colleges के लिए you can just check on their website and find out the details about the fees and the placement records, right? ये 3 colleges SIBM Pune, SCMHRD Pune, SIIB are safe to go, right? You will definitely get placement, good ROI, and you will definitely be safe if you are getting admission into these colleges. And you can also opt for SIOM Nasik for your operation management program. So that's it for the SNAP, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you got a complete idea how you should be preparing for SNAP, how you should be attempting the paper, right? I will be putting videos for your complete syllabus of reasoning and also 100 quant questions for SNAP program. That video is, I'm working on this video of 100 quant questions for SNAP, covering all the syllabus, covering all the topics, some selected moderate level of difficulty questions, and with how to solve this question with tricks. Because इसमें ट्रिक्स बहुत मैटर करेंगी, स्पीड बहुत मैटर करेगा. सो दैट वीडियो इज लाइंड अप एंड यूल ऑल्सो बी गेटिंग द कंप्लीट सिलेबस ऑफ रीजनिंग ऑन दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड more videos will be uploaded for your exam preparation soon on this channel. Thanks a lot.